نیوز اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی نے ڈیجیٹل مردم شماری پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ وڈیروں کے ہاتھوں کراچی کا سودا نہیں ہونے دیں گے۔ مردم شماری میں پہلے کاغذ پر جعل سازی کی جاتی تھی، اب ڈیجیٹل مردم شماری کے نام پر ٹیبلٹ پر کی جا رہی ہے۔ اپریل کو جماعت اسلامی کا شارع فیصل پر احتجاجی مارچ کا اعلان۔ ادارے نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان بولے، کتنی دہائیاں گزر گئی، نہ گنتی درست ہو سکی اور نہ ہی انتخابی عمل ٹھیک ہوا۔ اس شہر کے ساتھ ہر بار جعل سازی کی گئی۔ سول سروسز سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنی تمام تر چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر پیپلز پارٹی کے اور سندھ حکومت کے بی ٹیم کیا بلکہ اے ٹیم کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہی کام انہوں نے الیکشن میں کیا، آر اوز اور ڈی آر اوز کے نام پر ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز نے، اور انہوں نے نمبروں کو تبدیل کیا، جعل سازی کی۔ حافظ نعیم نے کہا کہ جب تک کراچی کی گنتی پوری نہیں ہوتی، مردم شماری کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ ہمیں خیرات نہیں، اپنا حق چاہیے۔ انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے، اس لیے اس طاقت کا اظہار پازیٹیو وے میں ہونا چاہیے، نفرت میں نہیں ہونا چاہیے، لسانیت میں نہیں ہونا چاہیے، اپنے حق کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمیں گنتی کی خیرات نہیں چاہیے، ہمیں حق چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ افسوس کی بات ہے بڑی جماعتیں اقتدار کی جنگ لڑ رہی ہیں، کراچی کا تو کوئی ذکر کرنے کو بھی تیار نہیں۔ کیمرامین حسن اقبال کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21۔ پی ٹی آئی کراچی نے مردم شماری کے متعلق اتوار کے روز اہم کانفرنس طلب کر لی ہے۔ خرم شیر زمان، ارسلان تاج اور دیگر رہنماؤں نے کہا کہ جماعت اسلامی سمیت حزب اختلاف کی تمام جماعتوں کو دعوت دی ہے۔ انصاف ہاؤس کراچی میں پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی نے پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ کراچی کی آبادی کو جان بوجھ کر کم ظاہر کیا گیا ہے۔ مردم شماری کے مسئلے پر شہر بھر میں احتجاجی مظاہرے ہوں گے، کانفرنسز ہوں گی اور بڑا مظاہرہ کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کراچی کے جنرل سیکرٹری ارسلان تاج گھمن کا کہنا تھا کہ جان بوجھ کر شہر کراچی کو نقصان پہنچایا گیا، جس کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے۔ یہ سینسس متنازع ہو کے ختم ہو چکا ہے، اب کوئی بھی اس کا نتیجہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ یہ آلریڈی کنٹروورشل ہو چکا ہے معاملہ، کیونکہ جو متعین کردہ ٹائم پیریڈ تھا اس میں انہوں نے گنتی صحیح نہیں کی۔ اب یہ آگے کرتے رہیں، یہ لالی پاپ دیتے رہیں، اس طرح اس کو سینسس کو جان بوجھ کے متنازع بنا کے جنرل الیکشن کو روکنے کی سازش ہے۔ پی ٹی آئی کے ارکان سندھ اسمبلی کا کہنا تھا کہ پرویز الہی کے گھر پر پولیس کی کارروائی کے بعد حکومت سے مذاکرات مخدوش ہو گئے ہیں۔ کیمرامین اجلال حاجی کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ متحدہ پاکستان کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ مردم شماری کے حوالے سے ہمارے تحفظات درست ثابت ہوئے۔ وزیر اعظم سمیت حکومت نے ہماری گزارشات پر تحفظات کا اظہار کیا۔ ایم کیو ایم پاکستان رابطہ کمیٹی کا اجلاس ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت بہادر آباد مرکز میں ہوا، جس میں سینئر ڈپٹی کنوینئرز سید مصطفیٰ کمال، ڈاکٹر فاروق ستار، نسرین جلیل، ڈپٹی کنوینئرز اور اراکین رابطہ کمیٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اجلاس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کا جائزہ اور رابطہ کمیٹی کو ایم کیو ایم وفد کے اسلام آباد میں ہونے والی ملاقاتوں سے آگاہ کیا گیا۔ رہنماؤں نے کہا کہ ہمارے خدشات اور تحفظات ڈیجیٹل مردم شماری کے اب تک کے نتائج کے مطابق بالکل درست ثابت ہوئے۔ وزیر اعظم سمیت تمام اعلیٰ حکام اور افسران نے ہمارے پیش کردہ حقائق پر تشویش کا اظہار کیا۔ ہمیں یقین دلایا کہ مردم شماری میں ایک ایک فرد کو گنا جائے گا۔ سندھ سرکار نے ہیپاٹائٹس پر قابو پانے کے لیے کمر کس لی ہے۔ گیسٹرو انٹرولوجسٹ ماہر امراض جگر اور معدہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم باجوہ کو ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام کا کنسلٹنٹ مقرر کر دیا ہے۔ بات کریں گے آزاد نہوڑیوں سے، بتائیے گا آزاد۔ جی بالکل، اس وقت سندھ میں بڑھتے ہوئی ہیپاٹائٹس کے مرض پر قابو پانے کے لیے سندھ سرکار نے باضابطہ طور پر کمر کس لی ہے، اور اس پر قابو پانے کے لیے گیسٹرو انٹرولوجسٹ ماہر امراض جگر معدہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم باجوہ کو ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام کا کنسلٹنٹ مقرر کر دیا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ صحت نے باضابطہ طور پر ان کی مقرری کا آرڈر بھی جاری کر دیا ہے۔ اس وقت ڈاکٹر محمد اکرم باجوہ لیاقت میڈیکل یونیورسٹی میں تعینات ہے، لیکن اس وقت ان کی خدمات بھی اور کنسلٹنٹ کے طور پر ان کو ذمہ داریاں دے دی گئی۔ ان کی ذمہ داریاں ہوگی کہ مریضوں کے علاج اور ادویات کی فراہمی اور مریضوں تک یقینی بنانے کے حوالے سے یہ اقدامات کریں گے، اور ہیپاٹائٹس پر کنٹرول کرنے کے حوالے سے ان کی ذمہ داری ہوگی کہ ہیپاٹائٹس پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے، اور محکمہ صحت کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کا
तावन यानी राब्ता करे के अमल को यकीनी बनाएंगे। जी। बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन चौधरी आमिर कहते हैं कि कराची की 70% फ्लोर मिल्स में गंदम खत्म हो चुकी है। गंदम ना मिली तो आटा मजीद महंगा हो जाएगा। रूस से दरामदी गंदम 93 रुपए फी किलो में खरीदी जा सकती है। मई को अगर सूरत हाल कुछ नहीं होती तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगला लाएबल हम दे देंगे। हमारे पास तो गंदम होगी नहीं, हमारी मिलें खाली पड़ी होंगी, हम आपको विजिट करा देंगे, मिलें बंद होंगी, आटा जाने और गवर्नमेंट जाने, हमारा किसान उसमें से माइनस हो जाएगा। मैं समझता हूँ 30-40 पहले तो बिल्कुल बंद होगी, गंदम नहीं होगी। बाकी जो पासको से गंदम का जिक्र किया था ना मैंने आपको, 300 बोरी रोज मिल रही है। वो 300 बोरी हमारे सिर्फ 2 से 3 घंटे का माल होता है, 2 से 3 घंटे में चलती है, वो आ रही है, चल रही जा रहा है। 2 अरब 75 करोड़ की गंदम आ गई है, बाकी 3.5 अरब रुपये फंसे हुए हैं, वो थोड़ी करके आ रही है। एक हमारे इतने सारे पैसे फंस गए, उसमें परेशान भी हो गए, और ऊपर से सिंध से भी एक दाना नहीं छोड़ा। इनको चाहिए था कि पासको से अगर बात नहीं बनी है तो भाई आप थोड़ा सा लूज कर दो, सिंध से गंदम आने दो, लेकिन नहीं माने। इतने हड़दड़म लोग हैं, कह रहे हैं आप इसी पे गुजारा करें फिलहाल। इनको किसी की फिक्र नहीं है, ना हमारे कारोबार की, ना आवाम की, ना कुछ। आटा भले 200 रुपये किलो हो जाए, हो जाएगा एक दिन में, आप लोग देख लोगे। 93 रुपये किलो गंदम आ जाएगी ओपन मार्केट से, रशिया से। हमारी गंदम का रेट क्या हो गया है? 120 रुपये किलो। कितना बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। के इलेक्ट्रिक ने शहर के खतरे की घंटी बजा दी है। माली मुश्किलात की वजह से मौसम गर्मा में शहर में बदतरीन लोड शेडिंग का खदशा पैदा हो गया। इलेक्ट्रिक के नफ़ा और नुकसान के हवाले से जारी रिपोर्ट में हैरान कुन इंकिशाफ के इलेक्ट्रिक के माली साल 2023 के इब्तिदाई 9 माह में रिकॉर्ड 39 अरब 40 करोड़ रुपए का खसारा हो गया। माली साल 2022 के इब्तिदाई 9 माह में 1 अरब 49 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। मौशी सुसरवी के बाइस के इलेक्ट्रिक के बिजली के यूनिट्स के इस्तेमाल में भी नुमाया कमी। गुज़श्ता माली साल 9 माह के मुकाबले में रवां माली साल के 9 माह के दौरान 5.8% बिजली के यूनिट्स के इस्तेमाल में कमी देखी गई। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई के बाइस के इलेक्ट्रिक को सार्फिन की जानिब से बिलों की अदायगियों में कमी का सामना है। ज़राए के इलेक्ट्रिक के मुताबिक अदायगियों में कमी और अरबों रुपए के खसारे के बाइस ऑपरेशन चलाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। अब शहर में हाई लॉस वाले एरियाज में बिजली फराहम करना कंपनी के लिए मुमकिन ही नहीं रहा। गर्मी में चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग बढ़ेगी। अप्रैल में बिजली चोरी वाले इलाकों में 6 से 8 घंटे और कम बिजली वाले इलाकों में 2 से 3 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। अब ज्यादा बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग के दौरानिये 12 घंटे से भी ज्यादा हो सकते हैं। अशरफ खान, सिटी 21। कराची चैम्बर ने तवील तातीलात पर बैंक्स बंद होने से माली मुश्किलात बढ़ने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कराची चैम्बर मैनेजिंग कमेटी मेंबर ज़ियाउल आरफीन ने कहा कि कारोबारी रकम जिससे लेने की बात करो तो पहले ईद के बाद और अब 1 मई के बाद देने का कह रहा है। सेल्स टैक्स की अदायगी के लिए तारीख न बढ़ने पर ताजिर शदीद परेशान है। कराची चैम्बर ने तवील तातीलात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मेंबर मैनेजिंग कमेटी ज़ियाउल आरफीन बोले कि महंगाई की वजह से तमाम कारोबार पहले ही से मुतासिर है। साथ ही रमज़ान में भी कारोबार बहुत सुस्त रहा। 21% बुलंद शरह सूद से पहले ही कर्जा लेने वाले शदीद परेशान हैं। ज़ियाउल आरफीन का कहना है कि ईद पर 5 रोज़ की तवील तातीलात पर बैंक्स बंद होने से सिस्टम मुतासिर हुआ है। अब 1 मई को यौम मजदूर पर भी पीर को आम तातील का ऐलान किया गया है। एक साथ 3 रोज़ बंद होने से माली मुश्किलात बढ़ेंगी। ये जो 5 छुट्टियाँ हैं, एक्सल में 5 नहीं है, 6 से 7 छुट्टियाँ हो गई हैं। और बैंकिंग का जो बंद होना, ज़ाहिर सी बात है, बिज़नेस वैसे ही स्लो डाउन हो गया है। और तशवीश की बात ये भी है कि आपका जो 21% जो इंटरेस्ट रेट है, आप खुद सोच सकते हैं कि आज के दौर में आदमी का जो बिज़नेस मार्जिन होता है वो 6 से 7% होता है। तो ऑब्वियसली एक साइन है कि बिज़नेस बिल्कुल स्लो डाउन हो गया है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस नहीं है। कराची चैम्बर मैनेजिंग कमेटी मेंबर ने कहा कि तवील तातीलात की वजह से कारोबार के लिए आने वाली रकम भी ताख़ीर का शिकार हो जाती है। हर माह सेल्स टैक्स रिटर्न जमा कराने पर भी तारीख में इजाफे की दरख्वास्त की थी। रकम आएगी तो ही टैक्स अदा कर सकेंगे। तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन देनी चाहिए। देखिए, टैक्स तो इंसान ने भरना ही है, मगर इसमें रिलैक्सेशन में ये होगा कि एक जो टाइमली प्रेशर होता है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसके लिए मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको रिकन्सिडर करें। कराची चैम्बर के मेंबरान ने सवाल उठाया कि पहले 5 रोज़ और अब 3 रोज़ बैंक सिस्टम एक साथ बंद होने से पैसे कैसे आएंगे। हुकूमत को छुट्टियों पर प्लान के तहत काम करना चाहिए।
शहर के नालों का बुरा हाल हो गया। सोल्जर बाजार नाले पर दीवार है, ना सफाई सुथराई का कोई इंतजाम। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के दावे भी खोखले निकले। शहरी सफाई का मुतालबा कर रहे हैं। सोल्जर बाजार के कचरे से भरे नाले ने केएमसी की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। नाले में पानी कम और कचरा ज्यादा दिखाई देने लगा। सोल्जर बाजार थाने के अतराफ से गुजरने वाले नाले की एहतियाती दीवारें भी खत्म हो चुकी हैं, जो किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती हैं। शहरियों का कहना है कि सफाई के नाम पर मजाक किया जा रहा है। पहले ही सफाइयाँ महज दिखावे के तौर पर की गई थी। बारिश आती है, अपनी मदद आप हम नाला साफ करते हैं, लोगों के घरों में पानी गिर जाता है। अब पानी की सफाई हम खुद करते हैं, केएमसी नहीं आती। जब केएमसी जब आती है, जब ये मुंह साफ करके चली जाती है, खाली मुंह साफ करती है, आगे तक सफाई नहीं करती। अब आगे जाके देखिए कितना गंद पड़ा हुआ है। कोई सफाई नहीं है। आपके सामने ये सारा टूटा हुआ ग्रीनर तोड़ के गई है, कोई सफाई नहीं हो रही। यहाँ पे मच्छर है, बच्चे बीमार हो रहे, गिर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी सफाई कराएं आप। जाहिर सी बात है, काफ़ी अरसा हो गया इस दीवार को, ये दीवार पीछे से बिल्कुल गिर गई है। और देखें वो आगे पुल और सारे अतराफ के जितने भी घर हैं वो सारे जो है ना वो तबाही का शिकार हैं। शहर में मुमकिन बारिशों के पेश नजर एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने अपनी भरपूर तैयारियों की नवीद तो सुना दी है, लेकिन नालों की सफाई ना करवा सके। मुमकिन बारिशों के नतीजे में नाले से निकलने वाला पानी घरों में दाखिल होने का खदशा है। जुनैद जावेद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। महकमा बल्दियात की जानिब से कराची के नालों की सफाई के लिए मांगे गए 1 अरब रुपए पर महकमा खजाना ने एतराज़ लगा दिया। कहा सूबा पहले ही माली बहरान का शिकार है, महकमा बल्दियात अपने वसाइल से काम कराए। शहर कायद में नालों की सफाई का मामला खटाई में पड़ गया। महकमा बल्दियात की नालों की सफाई के लिए समरी पर एतराज लग गया। महकमा खजाना ने महकमा बल्दियात की समरी वजीर आला सिंध को भेज दी। महकमा खजाना के मुताबिक केएमसी और डीएमसीज के बजट में पहले ही 15% रकम बढ़ाई गई थी। गुज़िश्ता साल नालों की सफाई के लिए 63 करोड़ रुपए दे चुके हैं। कराची में रास्तों की मुरम्मत और तामीर के लिए 1.5 अरब भी दिए गए। महकमा खजाना ने महकमा बल्दियात को मशवरा दिया है कि केएमसी और डीएमसीज के जितने नाले हैं वो अपने वसाइल से सफाई कराएं। सूबे की 1 अरब रुपए देने से मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ जुनैद जावेद, सिटी 21। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का खतरा, अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड कायम कर दिए गए हैं। जना अस्पताल में भी मंकी पॉक्स के हवाले से आइसोलेशन यूनिट कायम कर दिया गया। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स की बाज़गश्त के बायस लोगों में खौफ व हिरास फैलने लगा। जिन्ना अस्पताल में 10 बिस्तरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन यूनिट कायम कर दिया गया। सरबराह मेडिकल आईसीयू जिन्ना अस्पताल डॉक्टर जिशान का कहना था कि 5 बेड खवातीन के लिए और 5 बेड मर्दों के लिए मुख्तस किए गए हैं। हर एक कमरे में 2 बेड हैं ताकि फासला बरकरार रखा जाए। मंकी पॉक्स एक से दूसरे में मुंतकिल होने वाला मर्ज है। JPMC इज़ वन ऑफ द मेजर टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है। तो हमारे पास हमने फ़िलहाल, क्योंकि अभी पेशेंट लोड नहीं है, 10 बेड रेडी किए हुए हैं और वो आइसोलेशन के हिसाब से। और बाकी बेसिक फैसिलिटीज़ ये है कि ज़रा ऑक्सीजन मॉनिटर्ड बेड्स हैं ये सारे के सारे, और ज़रूरत पड़ने पे यहाँ पे वेंटिलेटर भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं। फुल फ्लेज आईसीयू में कन्वर्ट किया जा सकता है इनको एज नीडेड पेशेंट्स में। डॉक्टर जिशान का मजीद कहना था कि अब तक कोई केस जिना अस्पताल में नहीं आया है। अगर आएगा तो फौरी तबी इमदाद फरहम की जाएगी। अभी तक इसकी कोई डिफाइंड ऐसी कोई दवा या वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इसमें सिर्फ एहतियात ही करनी है, आइसोलेशन करनी है। एक पीरियड है जिसमें ये बीमारी फैलती है, उस दौरान अगर आप अपने कॉन्टेक्ट्स को लिमिट कर देते हैं तो ये बीमारी कम लोगों को लगेगी आपसे। डॉक्टर जिशान ने अपील की है कि मंकी पॉक्स की कोई वैक्सीन नहीं, एहतियात ही इस वबा का वाहिद हल है। अलामात जाहिर होने पर डॉक्टर से रुजू करें। कैमरामैन अजलान के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। और नाजरीन, अप्रैल का महीना ग़िज़ाई नाली के कैंसर से आगाही के तौर पर मनाया जाता है। इसी मुनासबत से जिना अस्पताल में शोबा छाती की सर्जरी के ज़रिए एहतमाम आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। कैंसर से आगाही के लिए अहम प्रोग्राम। जिना अस्पताल के शोबे थ्योरेसिस सर्जरी के ज़ेरे एहतमाम नजमुद्दीन ऑडिटोरियम में ग़िज़ाई नाली के कैंसर के हवाले से सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें शोबे थ्योरेसिस सर्जरी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर तनवीर अहमद समेत इंडस अस्पताल के प्रोफेसर ऑफ फैमिली मेडिसिन डॉक्टर फरीदा अमीन, शोबे मैदे के सरबराह डॉक्टर नाजिश भट्ट और दीगर ने शिरकत की। डॉक्टर तनवीर अहमद ने कहा कि ये कैंसर न सिर्फ मर्दों बल्कि खवातीन और बच्चों को भी हो सकता है। इस कैंसर की अलामत ये है कि इंसान कुछ खा पी नहीं सकता। बिल्कुल, ये फीमेल्स में भी पाया जाता है। और मैं आपको बताऊं, हैरानगी की बात है कि मैंने 12-12 साल की बच्चियां और बच्चे भी देखे हैं जो कैंसर में मुब्तला होते हैं, क्योंकि शुरू दिन से ही जब वो 5 से 6 साल के होते हैं उनको गुटखे की आदत डाल देते हैं घरों में, तो वो यही चबाते रहते हैं और 5 से 6 साल में ये
कैंसर अलामत ज़ाहिर करता है। सबसे बड़ी जो अलामत होती है वो खाने पीने से लाचारगी हो सकती है, बेचारे खा ही नहीं सकते, कुछ निगल ही नहीं सकते। डॉक्टर तनवीर अहमद के मुताबिक पान गुटखा खाने वालों को ग़िज़ाई नाली का कैंसर जल्द अपनी लपेट में लेता है। बरवक्त तशखीस हो जाए तो इलाज मुमकिन है। सबसे बड़ी बात जो हम लोग सोशली स्मोकिंग करते हैं या घरों में अपने स्मोकिंग करते हैं या लॉन्ग टर्म स्मोकिंग होती है, गुटखा लेते हैं। बहुत सारे मरीज़ ऐसे भी हमारे पास आए हैं जिनकी वजूहात गुटखा हैं कैंसर की बनने की। इसके अलावा कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो बहुत उनकी मोटापे की वजह से ये अलामात ज़ाहिर होती हैं। प्राइवेट अस्पतालों में ग़िज़ाई नाली के कैंसर का इलाज 12 से 13 लाख में होता है, लेकिन जिन्ना अस्पताल में इस कैंसर का इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जा रहा है। कैमरामैन अजलान के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। वेलकम बैक। सीव्यू से ईद के तीसरे रोज लापता होने वाली 2 कम उम्र बच्चियों का ताहाल पता न लग सका। जमीन खा गई या आसमान निकल गया, मासूम कलियां ताहाल लापता। ईद की खुशियां मनाने वाला खानदान गम की तस्वीर बन गया। 2 और 3 साला मासूम बच्चियों अनाबिया और बुशरा ताहाल न मिल सकी। लापता बच्चियों के वालिद का कहना है पुलिस ताउन नहीं कर रही, एहतजाज करेंगे। अहले खाना ने सिंध हुकूमत से मदद की अपील कर दी। पुलिस के पास कल भी गए थे, उन लोगों ने आराम से एसी के नीचे बैठे हुए। ज्यादा परवीन का उसके पास केस है हमारा, वो आई थी 3 दिन पहले, हमारे से पूछे बस। फिर हम उनके पास कल गए हैं, वो चुप करके आराम से अपने घर में बैठी हुई है। कोई पुलिस का हमारे साथ कोई रवैया सही नहीं है। मुर्तज़ा बाब से और सैयद गनी से, सिंध हुकूमत से मेरी अपील है, मेरे साथ आप तावन कीजिए। अगर आपकी बच्चियाँ होती तो आप ऐसे चुप करके बैठे रहते। SSP इन्वेस्टिगेशन साउथ जाहिदा परवीन के मुताबिक तफ्तीशी अफसरान केस पर काम कर रहे हैं, पुलिस छापे मार रही है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ अनुषा जाफरी, सिटी 21 न्यूज़, कराची। आलमी मार्केट में सोना $6 महंगा हो गया। मुकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 800 रुपये महंगा होकर 2,19,500 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया। 1 तोला चांदी 2,600 रुपये की बुलंद सतह पर बरकरार है। बीकन हाउस स्कूल के तलबा के लिए पाकिस्तान का पहला इनक्यूबेटर मुतारिफ करा दिया गया है। मजीद बताएंगी अक्सा शाहिद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के मकामी होटल में, जहाँ जो है वो बिकन हाउस की स्कूल की जानिब से 10 से 19 साल के बच्चों के लिए जो कि अपने बिज़नेस का स्टार्टअप ले सकते हैं, बिज़नेस इंक्यूबेटर की जानिब से जो है वो यहाँ पर सेरेमनी लॉन्च की गई। इसमें तकरीबात भी मुनक्किद हुई, इसमें जो है वो खिताब भी किए गए। इस वक्त मेरे साथ जो है बिकन स्कूल के रिस्पॉन्सिबल पर्सन रमीस रिजवान मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, आप मुझे बताइएगा कि क्या सोच के आपने जो है इसका स्टार्टअप लिया है और किस तरह इसको आगे चलाने वाले? देखें, अभी पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर आपने देखा है कि काफ़ी कंपनीज़ के स्टार्टअप्स जो हैं वो लॉन्च हुए हैं। हमारा ये जो आइडिया था वो ये था कि हम लोग 10 से 19 साल के बच्चों को भी एक प्लेटफॉर्म दें ताकि वो अपने आइडियाज़ को आएँ, प्रेजेंट करें और बिजनेसेस के अंदर कन्वर्ट करने के अंदर अपनी तहसील हासिल कर सकें। अभी आपने देखा कि आपके पास कराची के जो बच्चे थे, आज उन्होंने अपनी बिजनेस का स्टार्टअप जो है वो प्रेजेंट किया, तो आपको क्या लगता है, उससे क्या उम्मीद रखते हैं? देखें, आगे इस दुनिया को और इस मुल्क को बच्चों ने ही, हमारी जो बच्चों की जनरेशन है उन्होंने ही आगे लेके जाना है। सो हम लोगों के लिए बहुत जो है वो उम्मीद है इन बच्चों के लिए कि ये जो है वो इस किस्म के आइडियाज़ जो हैं वो लेके आ सकते हैं एंड दे आर एक्चुअली कॉन्फिडेंट इनफ कि वो उनको बिजनेसेस के अंदर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के अंदर जो है वो लेके जा सकते हैं। बिकॉज़ देखिए, कंपनीज़ में काम करना तो बहुत आसान है, लेकिन एक नया आइडिया डेवलप करना और एक नए कंपनी या नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना, ये हर इंसान के लिए नहीं होता। सर जी बिल्कुल, लेकिन आपने सुना कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन रमीज रिजवान का यही कहना है कि बिकन हाउस की जानिब से लॉन्च की गई स्पार्क टैंक इंक्यूबेशन बिजनेस जो है वो बच्चों के लिए और पाकिस्तान के लिए इंतहाई जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि बच्चे जो हैं बिज़नेस करना तो कोई भी कर लेता है, लेकिन न्यू आइडिया डेवलप करना, न्यू आइडिया को लॉन्च करना जो है वो बड़ी बात होती है, क्योंकि पाकिस्तान के बच्चे ही कल को पाकिस्तान का सरमाया है। हमें इस पर ही जो है वो काम करने की ज़रूरत है। तो लिहाजा यहाँ पर जो है बच्चों ने जहाँ अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट की, वहीं जो है बाहर स्टॉल्स लगाए गए जिसमें जो है बच्चों ने अपना छोटा सा आइडिया, छोटा सा स्टार्टअप जो है वो यहाँ पर बयान किया है। साथ ही लोगों ने उसे देखा है और इनकरेज भी किया है। जी, उलमा यूनिवर्सिटी में तलबा की जानिब से मल्टी कल्चर तकरीब का इनेकाद किया गया।
علما یونیورسٹی میں طالبات کی جانب سے 17 ممالک کے کلچر کو روشناس کرانے کے لیے اسٹال لگائے گئے، جس میں ترکیہ، مراکش اور موروکو کے کونسل جنرل نے شرکت کی، جہاں مختلف ممالک کی ثقافت اور کھانے رکھے گئے۔ تقریب میں مختلف ممالک کے کونسل جنرل نے اسٹالز کا دورہ کیا، اپنے ممالک سے متعلق آگاہی دی۔ مراکش کے کونسل جنرل اشتیاق بیگ سمیت ترکیہ اور ملائیشیا کے کونسل جنرل کا کہنا تھا کہ اس طرح کے ایونٹ سے مختلف ممالک کی ثقافت سے واقفیت ہوتی ہے۔ ایک بڑا اچھا یہ ایک ایونٹ ہے جس میں اسٹوڈنٹس کو ہمارے جو دوسرے کنٹریز ہیں، اسلامک کنٹریز خاص طور پہ، ان کے بارے میں، ان کے کلچر کے بارے میں، ان کے فوڈ کے بارے میں آگاہی ہوتی ہے۔ Pakistan culture is very similar with our culture because we are sharing the same culture, we are sharing the same values, same language, same religion. So we are very pleased to be here today with the Pakistani stand here. Sharing the same culture, the same values, as well as Malaysia with Pakistan. So it actually doesn't differentiate. There's not much difference. It's only maybe a little bit like Pakistani food is more spicy. علما یونیورسٹی کے وائس چانسلر منصور ظفر داؤد کا کہنا تھا کہ آئندہ بھی اس طرح کے ایونٹس کا انعقاد کیا جائے گا۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنا مراکش کے کونسل جنرل کا، ترکی کے کونسل جنرل کا، ملائیشیا کے کونسل جنرل کا کہ وہ تشریف لائے، کہ ان جیسے لوگوں کے آنے سے یقیناً ہمارے بچوں کی بہت حوصلہ افزائی ہوئی ہے اور ہم آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام کرتے رہیں گے۔ ترکیہ، مراکش اور ملائیشیا کے کونسل جنرلز نے تقریب کو سراہا اور طالبات میں سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ اقرا وان، سٹی 21۔ چائلڈ برائٹ اسٹارٹ اکیڈمی کی جانب سے سالانہ تقسیم تقریب انعامات کا انعقاد کیا گیا، جس میں ننھے بچوں نے زبردست ٹیبلوز پیش کر کے شرکاء کا دل جیت لیا۔ چائلڈ برائٹ اسٹارٹ اکیڈمی کی پرائمری اور سیکنڈری کے طلباء اور طالبات نے شرکت کی۔ اس موقع پر پلے گروپ کے طلباء کی جانب سے تارے زمیں پر ٹیبلو پیش کیا گیا۔ ٹیم میں موجود ایڈیشنل ڈی سی کورنگی نے بچوں کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ تعلیم سے گہرا تعلق ہے، ایسے بچوں کے درمیان آ کر اپنا وقت یاد آ جاتا ہے۔ میرا پرسنلی تعلیم کے ساتھ بہت لگاؤ ہے اور میرا یہ بات کا ماننا ہے کہ بچوں کے ساتھ جتنا زیادہ ہم تعلیم و تربیت پہ فوکس کریں گے اتنا ہی ایک قوم اس کے اوپر ریلائی کرتی ہے ترقی میں، کیونکہ نیپولین نے کہا تھا مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں پڑھا لکھا اور ترقی یافتہ معاشرہ دوں گا۔ تو جتنا ہم بچوں کی تعلیم پہ فوکس کریں گے اتنا زیادہ آپ پاکستان میں انویسٹ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی طارق حسن نے کورنگی کے علاقے میں بہترین تعلیم کے نظام پر اسکول انتظامیہ کی کاوشوں کو سراہا۔ کم پیسوں کے اندر تعلیم دینا اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے، کیونکہ یہاں چھوٹے چھوٹے اسکولز بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے پیرنٹس جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے اور وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے جو ہے وہ رہ جاتے ہیں۔ تو میں ان کو ان کی خدمات کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس اسکول کو، چائلڈ اسکول کو جو ہے بہت زیادہ امید کرتا ہوں کہ اس مشن کو جاری رکھیں گے اور کام کو آگے بڑھائیں گے۔ تقریب میں پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو اسناد اور شیلڈ پیش کی گئی۔ اس موقع پر والدین نے بھی شرکت کر کے طلباء کی حوصلہ افزائی۔ کیمرامین عاقب نقوی کے ساتھ نمرہ ریاست، سٹی 21۔ مختلف ماہرین نے کتابوں میں نفرت انگیز مواد نکالے جانے کے بغیر دہشت گردی پر قابو پانا مشکل قرار دے دیا۔ ماہرین نے کہا ہے کہ کتابوں میں نفرت انگیز مواد کے باعث دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ دہشت گردی پر قابو پانا ہے تو کتب میں سے نفرت انگیز مواد نکالنا ہوگا۔ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین نے اہم تجاویز دے دیں۔ نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس کے تحت سنگل نیشنل کلکرم ریجنل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈاکٹر ریاض شیخ، ڈاکٹر AH نیئر، ڈاکٹر آنسٹ فہیم سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا۔ ماہرین نے کہا کہ کتابوں میں موجود نفرت انگیز مواد کے باعث دہشت گردی سمیت ناگزیر واقعات کو فروغ مل رہا ہے۔ جب ہمیں خیال آیا کہ پاکستان کو ایک ماڈرن ڈیموکریٹک نیشن اسٹیٹ نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کو مدینے کی ریاست ہونا چاہیے، اور پھر جب آپ 1400 سال بعد کی ریاست بنانے کی کوشش کریں تو پھر تو وہی ہوتا ہے جو خیبر کے واقعات ہوتے ہیں۔ اس دوران، اس زمانے میں جہاں پہ لوگ مذہبی ریاست بنانا چاہتے ہیں، وہاں وہ بہت سی جگہوں کے اوپر بڑے پھنس جاتے ہیں کہ جس قسم کے اصولوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح اصول ہیں، وہ بعد میں نئے زمانے کی چیزوں سے بڑا ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ تقریب میں موجود NCJP کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نعیم یوسف گل کا کہنا تھا کہ ہم ہیومن رائٹس پر کام کر رہے ہیں تاکہ اقلیتی یا اکثریتی کی تفریق کے بغیر کام کر سکیں۔ NCJP ہیومن رائٹس کو ڈیل کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس کے لیے کام کر رہے ہیں،
चर्च, मंदिर, मस्जिद इसको डिफाइन ना करें। ये रिलीजन मैटर है। वी आर नॉट अ रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन। एक रिलीजन की बात हम नहीं कर रहे। वी आर वर्किंग फॉर ह्यूमन राइट्स। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका ने अपने तजर्बात और मुशाहिदात भी पेश किए और हाजरीन ने अपने सवालात भी मौजूद मुकर्रिरीन के जरिए हुक्मरानों तक पहुँचाने पर जोर दिया। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।